Hello, good morning, FIBCom students. Hello, Good morning, ma'am. good morning. Shall we start? Shall we Yes, ma'am. start? Okay, let's start. So yesterday we were discussing about the which was the last point. Yesterday we were discussing about the organizing conferences, do and don'ts. We already discussed. Now today we are going to discuss about the webinar. Write down the title webinar. Webinar. What is webinar? Webinar is the short form of the web-based seminar. Webinar is a presentation, lecture, workshop or seminar that is transmitted over the web using video conferencing software. The key feature of the webinar is its interactive elements, the ability to give, receive and discuss the information in the real time. Using webinar software, participants can share audio, documents, applications with webinar attendees. This is useful when the webinar host is conducting the lecture or the information session. So webinar, what is webinar? Webinar is the short form of the web-based सेमिनार कि जैसे आपके भी वेबिनार्स हुए अभी हुए थे ना 5 दिन का स्किल बेस्ड का वेबिनार हुआ था कि नहीं हुआ था हाँ या ना हेलो Yes. Yes, ma'am. हाँ so it is called webinar. Webinar is the short form of web based seminar जहाँ पे means whenever the presentation lecture document seminar is transmitted through the web and by using video conferences. You are attending means suppose if we are attending the lecture then we are attending the lecture at that time we are called attendees and the person who is giving webinar or who is giving presentation that he is called host. Okay, so here that this is the one kind of that this is one kind of the software which we can share the audio, video, documents, application with the attendees. Now we will talk about Skype. Skype का कितने जन इस्तेमाल करते हैं Skype? कितने जन इस्तेमाल करते हैं Skype इस्तेमाल करते हैं कोई Skype इस्तेमाल करता है हाँ या ना हेलो No, ma'am. No. Okay, what is Skype? The Skype app, there are four types of conferences available in the Skype. So first is, write down, there are four types of conferences available in the Skype. Four types of conferences. First point is, first point is web conferencing and video conferencing, just like webinar, video and web conferencing. Then second point is dial-in conferencing. Then third point is instant message, IM बोलते हैं, instant message conferencing. Written, these are four types of Yes, ma'am. conferencing. Yes, ma'am. So here you can choose to enable conferencing the types or to use only the types depending on your needs. So according to your needs, according to our needs means attendees needs, we can use this kind of that conferences or we can use this kind of the conferences which is given in the Skype. कि for example वीडियो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे ऑडियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बोलते हैं कि यहाँ पे वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट फॉलोइंग सजेशंस सब्सक्राइब और सॉरी द फॉलोइंग सजेशंस डिस्क्राइब द फीचर्स एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच कॉन्फ्रेंसिस टाइप कि जितने भी अभी वेब कॉन्फ्रेंसेस दिए जाते हैं तो उसके फीचर्स क्या हैं तो अभी हम देखने वाले हैं तो अभी ये हमने फोर टाइप्स लिखे ना वी हैव रिटन फोर टाइप्स वेब कॉन्फ्रेंसिस देन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस देन instant message conferences and dialing in conferencing तो अभी इसके हम टाइप्स देखने वाले राइट डाउन द फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हैव यू रिटन वेब कॉन्फ्रेंसिंग हैव यू रिटन वेब कॉन्फ्रेंसिंग यस और Yes, नो ma'am. Yes, हाँ ma'am. उसमें पहला पॉइंट है वाइट बोर्ड
व्हाइट बोर्ड। दूसरा पॉइंट है पोलिंग। पोलिंग मीन्स मतदान करना, पोलिंग। देन थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेशन शेयरिंग एंड डेस्कटॉप शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग एंड डेस्कटॉप शेयरिंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज पावर पॉइंट शेयरिंग। पावर पॉइंट शेयरिंग। लिखा? लिखा? हैव यू रिटन? Yes, हैव ma'am. यू रिटन? ओके। अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऊपर कुछ आपके ये जैसे सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स, न्यू शेयर, पॉज शेयर, एनोटेट, एनोटेट, ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन में से? Yes, ma'am. दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे पेंसिल जैसा दिखाई दे रहा है ना, पेंसिल जैसा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको Yes, ma'am. माउस माउस दिखाई देगा, फिर सिलेक्शन कौन सा है, फिर टेक्स्ट है, फिर ड्रॉ करना है तो वो आपको दिखाई देगा, स्टैम्प्स कहाँ लगाना है, फिर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स लाइट, तो मुझे स्पोर्ट्स लाइट इस्तेमाल करना है। ओके, तो स्पोर्ट्स लाइट इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये देखिए स्पोर्ट्स लाइट आपको समझ में आया, रेड कलर का कुछ, हाँ या ना, दिखाई दे रहा है? हाँ मैम, yes हाँ, मैम. सो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट लाइट। ओके, तो ये बहुत कॉन्फ्रेंस। देन इरेजर, जैसे शुरुआत में, जैसे बिगिनिंग में कुछ बच्चे ऐसे परेशान करने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए जैसे ड्राइंग बनाते थे, तो यहाँ पे देखिए इरेजर मीन्स उसको आप क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इरेजर दिया गया है। फिर ये देखिए फॉर्मेट, तो आपको फॉर एग्जांपल लाइन बोल्ड करना हो या हम बोलते हैं कि टेक्स्ट बोल्ड करना हो, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर भी दिए गए, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? हाँ या Yes, ना? Yes ma'am. ma'am. हाँ। Yes, ma'am. फिर अनडू और रीडू, और बाद में है कि जो पॉइंट हमें नहीं चाहिए या जो स्लाइड नहीं चाहिए, गलती से कुछ हो गया तो उसको आप क्लियर भी कर सकते हो, उसको आप सेव भी कर सकते हो। तो ये एनोटेशन बताया गया है, समझ में आ रहा है? तो एनोटेशन में देखिए, whiteboard and annotation. The whiteboard is the black canvas that can use for the collaboration with the text, ink, drawing, and emojis. Images. Annotation made on whiteboards can be seen only by the meeting participants. The whiteboard feature enhance the collaboration by enabling the meeting participants to discuss the ideas, brainstorm, take notes and so on. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि जो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एक ब्लैक टाइप का कैनवास होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे मुझे व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना है, यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए और फीचर्स भी होंगे शायद, तो इसकी वजह से हम आपको क्या दिखा देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको शायद ये पता होगा कि कभी कभी अभी बाजार में, जैसे हम बोलते हैं कि बाजार में नहीं लेकिन जैसे मोस्ट प्रोबेबली कि जैसे कम स्टूडेंट हो या हम बोलते कम पार्टिसिपेंट्स हो और ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो कभी कभी टीचर्स और हम बोलते कि जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो वो व्हाइट बोर्ड पे दिया जाता है, तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द स्केच पेन ऑन इट, images you can draw the images, you can utilize also the, what we can say that pictures or something like that, so the person can understand, the attendees can understand in a much better way। और उसके बाद उसका पूरा पर्टिकुलर डस्टर आता है जिसको हम क्लीन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वो आपको पता, शायद पता हो चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करूँ, व्हाइट बोर्ड के बारे में बात करूँ। देन सेकेंड पॉइंट इज पोलिंग। द पोलिंग फीचर enhance the collaboration by enabling the presenter to quickly determine participants' preferences. Then during the online meetings and the conversation, the presenter can use polling to gather anonymous responses from the participants. All the presenter can see the result, can either hide the result or show them all attendees। तो यहाँ पे पोलिंग मीन्स हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल सबका डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, लास्ट में जो डिसीजन मेकिंग होता है या सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फीडबैक बोलते हैं उसको, तो वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इट इज़ नेगेटिव,
सो इट इज गिवन बाय द पोलिंग। तो क्या करता है, जो हम बोलते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव जो मैनेजर होता है, तो क्या करता है, प्रेजेंटर होता है, वो क्या करता है कि सब पार्टिसिपेंट्स के हम बोलते हैं कि प्रेफरेंसेस, उनको ये बात वो ये बात से सहमत है कि नहीं, वो उसके मीटिंग के बारे में मीटिंग के दौरान या कन्वर्जेशन के दौरान उसको पता चल जाता है। सो सबका वो क्या लेते हैं, राय लेता है, या हम बोलते हैं कि सबकी वो राय लेता है और सबका हम बोलते हैं कि वो फीडबैक लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पोलिंग। समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। Yes, एंड नेक्स्ट ma'am. पॉइंट इज एप्लीकेशन शेयरिंग एंड डेस्कटॉप शेयरिंग। तो अभी एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है? ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंसेस द मीटिंग प्रेजेंटर कैन शेयर देयर एंटायर डेस्कटॉप and individual application or individual monitors in the multi-monitor environment. Aside from just viewing the content, the participants in the conferences can request control of the presenter screen and with the permission interact with the content including scrolling and editing. Meeting participants can also take over the presenter एंड स्टार्ट शेयरिंग द कंटेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि जैसे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो पूरी स्लाइड है वो दिखाई दे रही है, डेस्कटॉप पे पूरी स्लाइड है वो दिखाई दे रही है, हाँ या ना? Yes, हाँ या ma'am. ना? हाँ, तो उसमें मैं चाहे तो एडिट भी कर सकती हूँ, उसमें मैं चाहे तो वो डिलीट भी कर सकती हूँ। मीन्स क्या होता है कि वो पूरा का पूरा डेस्कटॉप आपके साथ शेयर किया जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन है कि फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछली बार ईवीएस में आपको मैंने एक पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि स्टोन को लेके एक वीडियो दिखाया था, एम आई राइट? स्टोन को लेके एक वीडियो दिखाया था यूट्यूब से, हाँ या ना? दिखाया था ना Yes, ma'am. ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो वैसा एप्लीकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि जो अटेंडेंस होते हैं या हम बोलते हैं कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे कि हाँ अभी क्या बताना चाहने वाले हैं या अभी क्या बता रहे हैं, तो वो जल्दी से उनको समझ में आता है। समझ में आया? समझ में आया? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Yes, ओके। ma'am. अभी पावर पॉइंट शेयरिंग मीन्स हम बोलते हैं उसको पीपीटी बोलते हैं। सो इन द बिगिनिंग वी ऑलरेडी यूज दिस मेथड पावर पॉइंट पीपीटी। ओके, we made the PPT all the teachers and we share with you when the lectures are going on. We share with you means you can understand in a much better way what is called PPT, PowerPoint sharing. But though I will explain again that allow users to share PowerPoint presentation in the meeting, which allows for क्या होता है, high resolution displays and support for PowerPoint capabilities such as animation, slide transition and embedded video. तो जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके साथ हम बोलते हैं कि क्या होना चाहिए कि उसका हम बोलते हैं कि जो पावर पॉइंट कैपेबिलिटीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमेशन होता है। एनिमेशन मतलब फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तो जब हम बच्चों को दिखाते हैं, छोटे बच्चों को दिखाते हैं या हम बोलते हैं कि आपके यूथ मीन्स आपकी उम्र की बच्चों को जब दिखाया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। स्लाइड ट्रांजिशन मीन्स एक के बाद दूसरी स्लाइड आती है उसको स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। और एम्बेडेड वीडियो मीन्स उसमें वीडियो कंसिडर मीन्स वीडियो इंक्लूड होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप देखिए बच्चों के जो छोटे बच्चों के लिए जो हम बोलते हैं कार्टून आते हैं, तो कार्टून कैसे होते हैं, जैसे कलरफुल है, कोई कैरेक्टर बताया गया है, एनिमेशन है ना, दैट इज नॉट द रियल एनिमेशन है ना, सब कुछ इमेजिनरी है कि नहीं? इमेजिनरी है ना? Yes. हाँ या ना? तो Yes, ma'am. बच्चों को Yes, उस ma'am. वर्ल्ड में रहना पसंद आता है कि जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करेंगे फिर यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे पूरा का पूरा बुक का आपका यहाँ पे जैसे पीडीएफ दिखाया गया है, लेकिन आप जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेरी पीपीटी थे तो उसमें पिक्चर्स भी ऐड किए गए थे या नोट्स ऐड किए गए थे, तो सो मीन्स क्या हो सकते हैं, हम पर्सनस को या अटेंडेंस को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करके रख सकते हैं। दूसरा है मोबाइल डिवाइसेस कैन असेस दिस प्रेजेंटेशन। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कि मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। Users with the appropriate permission can scroll through the PowerPoint presentation independent of the presentation itself.
कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है तो वो अपने हिसाब से स्क्रोलिंग कर सकता है, मीन्स स्लाइड ऊपर करनी है, स्लाइड नीचे करनी है, कौन सी स्लाइड नेक्स्ट लानी है, तो वो स्क्रोलिंग अपने हिसाब से कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, while A is presenting his slide show and B can look at the slide and she wants to without affecting A's presentation. तो यहाँ पे क्या बताए कि दो व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल पर्सन ए और इंडिविजुअल पर्सन बी, दोनों ही, तो ए है तो स्लाइड शो बता रहे. स्लाइड शो में क्या होता है कि वहाँ पे आपने एक बार स्लाइड शो का बटन प्रेस कर दिया तो स्लाइड अपने आप आ जाती है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल उसके लिए टाइम सेट करना होता है कि कितने मिनट के बाद या कितने सेकंड के बाद आपका ये ख़त्म होगा, या आप खुद वहाँ पे कुछ कर सकते हैं. तो ये स्लाइड शो में होता है. और दूसरा जो होता है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है, लेकिन वो एक ही जो प्रेजेंटेशन है उसको ना डिस्टर्ब करके वो अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकता है. सो एक साथ बहुत सारे व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं. समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? Yes. Okay. Yes, ma'am. Then next point is write down audio video conferencing. ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या? ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या? रिटन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग Yes, ma'am. रिटन. हाँ. Yes, ma'am. Now we will discuss audio video conferencing. That audio video conferencing allows for the audio and video in the meeting. अभी तो ये समझ में आ रहा है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है तो वहाँ पे ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा. Audio allows the attendees to talk to each other as though they were in the same room. कि जब ऑडियो का इस्तेमाल किया जाता है तो सभी को, मीन्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी अटेंडीज है, एक रूम में बैठे हुए वहाँ पे वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. And video enables the video display in the sky for the business client of attendees, of any attendees or the presenter that join the meeting with webcam or conferencing device that support the video. तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल बिजनेस डील करने के लिए या मीटिंग डील करने के लिए, या जैसे अभी हम बोल रहे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर चल रहे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ दैट वीडियो और वेब कॉन्फ्रेंसेस बोल सकते हैं. तो व्यक्ति कहीं और पे है और जो हम बोलते हैं कि जो प्रेजेंटर है वो कहीं और पे है, तो अपनी बात उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या उस व्यक्ति तक मैसेज देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. जैसे मोस्ट प्रोबेबली हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते Yes, हैं? ma'am. हाँ. तो क्यों करते हैं? मीन्स we, if we want to give some message to our relatives, friends, whatever, so we can at least see them, we can give the message to them by video call. Get it? Get it? Get it or not? Hello? No, ma'am. No, ma'am. अरे आप जस्ट सिंपल सा एग्जांपल, आप वीडियो कॉल करते हैं कि नहीं? वीडियो कॉल करते हैं ना Yes, ma'am. अपने अपने Yes, रिलेटिव. ma'am. Yes. तो वीडियो कॉल के थ्रू आपको क्या महसूस होता है या क्या करते हैं आप? बात करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. एम आई राइट? हाँ या ना? हाँ. हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. Yes. ma'am. Yes, हाँ. ma'am. तो वहाँ पे क्या करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंस्टेंट कोई मैसेज देना हो तो कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं. इंस्टेंट कोई कॉल करना हो तो मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं. हाँ. पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कब करते हैं कि जैसे हम अपनी फैमिली की बात करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिस कब करते हैं कि अगर मुझे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस करना है, मैंने बहुत दिन से उस व्यक्ति को देखा नहीं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं. एम आई राइट ना? एम आई राइट ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. ma'am. Yes, तो ma'am. लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, तो क्या होता है कि बिजनेस डील करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च से लेके अभी फरवरी तक, मार्च तक अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है. सो व्हाट इज इट, जून से लेके सब कुछ फरवरी तक ऑनलाइन चल, मीन्स इट इज यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पस. For example, to run the college, to run the schools, to run the administrative. Am I right? With the help of web conferencing online. अभी समझ में आया?
अभी समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे बात करते हैं। देन ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑडियंस म्यूट। द प्रेजेंटर कैन यूज दिस सेटिंग टू म्यूट ऑल द ऑडियो पार्टिसिपेंट्स in the conferences and put the conferences in the state where non-presenter cannot unmute themselves। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कभी कभी बताती हूँ किसका ऑडियो चालू है, बोलती हूँ कि नहीं किसका ऑडियो चालू है, ये एक बार तो बोला जाता है। मीन्स मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं आपका ऑडियो बंद कर सकती हूँ और मैं आपको जस्ट इंडिकेशन देती हूँ कि आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। अगर वो चाहे पार्टिसिपेंट तो वो म्यूट भी कर सकता है, अगर ना चाहे तो वो म्यूट नहीं कर सकता। म्यूट नहीं किया तो क्या आएगा, क्या होगा? म्यूट नहीं किया तो क्या होगा? आजू बाजू की आवाज़ें, आसपास की आवाज़ें उस ऑडियो में सुनाई देगी। समझ में आया? सिंपल सा एग्जाम, सिंपल सा Yes, पॉइंट है। ma'am. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फ्रेंसिंग एंट्री और एग्जिट अनाउंसमेंट। कॉन्फ्रेंसिंग एंट्री मतलब क्या, कि एग्जिट अनाउंसमेंट मतलब क्या? इफ यू हैव अनेबल डायल इन कॉन्फ्रेंसिंग, द प्रेजेंटर कैन यूज दिस सेटिंग to turn the entry and exit announcement on or off to minimize the distraction while conference is in the progress। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मीटिंग के लिए कि जैसे पर्टिकुलर आपको पासवर्ड दिया गया है, हाँ या ना? पासवर्ड दिया गया है। जैसे Yes, ma'am. जूम का इनविटेशन आपको दिया जाता Yes, है, ma'am. वैसे गूगल मीट में भी आपको पर्टिकुलर लिंक भेजा जाता है। अगर उस लिंक में वहाँ पे पासवर्ड नहीं होता है, जैसे आपको पर्टिकुलर एंट्री के लिए, जैसे यहाँ पे जूम मीटिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर पासवर्ड लगता है कि लिंक लगती है। तो एंट्री जैसी होती है वैसे एग्जिट के लिए भी ऑन और ऑफ, एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए ऑन और ऑफ दोनों ही होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारा जूम का जो अभी जो मीटिंग हम ले रहे हैं या लेक्चर ले रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। एम आई राइट ना? उसके बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन जैसे हम अदर Yes, इक्विपमेंट्स ma'am. की बात करें या अदर रिसोर्सेज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मीट है वगैरह वगैरह, तो वो आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप चाहे इतना ले सकते हो, लेकिन उसका टाइम लिमिट है 2-3 घंटा। 3 घंटा उसका टाइम लिमिट है, एक मीटिंग 3 घंटे तक चल सकती है। सो मोस्ट प्रॉब्ली द पीपल यूजिंग अकॉर्डिंग टू their needs, the party sorry that हाँ participants and the host can use these devices according to their needs। Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज उसमें है एडिंग यूजर बाय डायलिंग आउट। एडिंग यूजर बाय डायलिंग आउट अभी क्या है कि प्रेजेंटर और अटेंडीज दैट हैव बीन गिवन परमिशन कैन ऐड द नंबर्स टू द कॉन्फ्रेंसेस एंड हैव कॉन्फ्रेंसेस डायल टू दोज नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताया गया कि जैसे जूम का मीटिंग जैसे आपको लिंक भेजा गया है तो आप चाहे तो उसमें आप खुद ऐड हो सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? हाँ, डायल इन आउट मीन्स चाहे तो आप वहाँ पे क्लिक किया तो ही आप ऐड हो सकते हैं, मैं आपको ऐड नहीं कर सकती। समझ में आ रहे हैं? या मैं चाहूँ तो ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आपने लिंक ही वहाँ पे क्लिक नहीं किया तो मैं यस आपको किस तरह से ऐड कर सकती हूँ? कर सकती हूँ क्या? नहीं। लेकिन जैसे हम मीट की बात करें तो मीट में क्या होता है No, कि ma'am. मीट का जो आपको भेजा जाता है उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को जो एग्जीक्यूटिव होता है या हम बोलते हैं कि जो प्रेजेंटर होता है उसको ऐड करना पड़ता है। समझ में आया? प्रेजेंटर खुद उसको ऐड करता है सभी अटेंडेंस को। यहाँ पे अटेंडेंस क्या होते हैं, जूम की बात करें तो अटेंडेंस क्या होते हैं, खुद ज्वाइन होते हैं, खुद पार्टिसिपेट होते हैं। समझ में आया? डू आई अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, ये 2 पॉइंट खत्म हो चुके यस हैं। अभी मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज Skype provides several features that user can use to configure that video conferencing experience for the user, including following। अभी Skype इस्तेमाल करने वाले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उसके पर्टिकुलर फीचर्स क्या हैं ये आपको बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है गैलरी व्यू। द गैलरी व्यू मीन्स मतलब क्या,
in the video conferences that have more than 2 people, and the users automatically see everyone in the conference. If the conference has more than 5 participants and the video of the most active participants appear in the top row, and only the photos appear for the other participants. Multi-party video is turned on by default. तो गैलरी व्यू मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे अभी आपने आपका ऑडियो बंद किया है, वीडियो बंद किया है, एम आई राइट ना? ऑडियो और वीडियो बंद किया है। ऑडियो शायद जब आप उत्तर देते हैं तभी ऑडियो स्टार्ट करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो? हाँ मैम। हाँ, और वीडियो अपना आपने अपना ना सबका बंद करके रखा है। तो सपोज आपने अपना वीडियो स्टार्ट किया तो मुझे आपके सभी के चेहरे क्या दिखाई देंगे? क्लियर दिखाई देंगे। मैंने भी अपना वीडियो बंद किया है, लेकिन अगर मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया तो मेरा चेहरा भी आपको क्लीन दिखाई देगा। मीन्स वो स्क्रीन पे आपको गैलरी व्यू में आपके सबके चेहरे और मेरा भी चेहरा नजर आएगा। तो इट इज कॉल्ड गैलरी व्यू। समझ में आया? समझ में आया? डू यू यस अंडरस्टैंड? मैम। हाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पैनोरामिक वीडियो। अभी पैनोरामिक वीडियो मतलब क्या? ये कौन से टाइप का वीडियो है? इफ अ राउंड टेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस is installed in the conferencing room, this feature provides the full 360-degree view of conference room. The panoramic video strip is only available with the round table devices. तो ये मोस्ट प्रोबेबली पैनोरामिक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशन में उसको हेल्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। शायद आपने टीवी में देखा होगा कि राउंड टेबल वाला होता है, टेबल राउंड होता है, सभी आसपास बैठे होते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. टेबल राउंड होते हैं, वहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपनी जगह पे बैठे हुए होते हैं और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैनोरामिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पैनोरामिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? यस समझा? मैम। ओके। Yes, ma'am. Then next point is presenter only video mode. तो presenter only video mode मतलब उसका क्या? The presenter can configure the meeting so that the video from the presenter is shown, and this prevents the distraction in the large meetings when the multiple video streams are available, locking the different resources. कि जब हम बोलते हैं कि ज़्यादा जब वीडियो ऑन होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि जो बाकी के जो रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट रिसोर्सेज, वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ प्रेजेंटर अपना वीडियो ऑन रखता है और बाकी के जो सब वीडियोस होते हैं हम ऑफ रखते हैं। कि जैसे अभी स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम हुआ था, ओके, 5 दिन का हमारा स्किल बेस्ड वेबिनार हुआ था, तो जो होस्ट थे या जो हम बोलते हैं कि रिसोर्स पर्सन थे, दे कैन ओनली शो देयर वीडियो, सो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, यस ये व्यक्ति बोल रहे हैं, हाँ ये व्यक्ति प्रेजेंटर है या ये व्यक्ति होस्ट है, तो तभी आपको समझ में आता है। समझा कि नहीं? डू अंडरस्टैंड ना? समझा ना? हाँ या यस ना? मैम। बाकी के सबके वीडियो कैसे थे? बंद थे। अभी भी सबके वीडियो कैसे हैं? बंद है। तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट रिसोर्सेज उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि नेटवर्क कनेक्टिविटी या कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसकी वजह से हमें वीडियो क्या करना चाहिए? ऑफ करना चाहिए। ओनली प्रेजेंटर कैन यूज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो अपना वीडियो दिखा सकता है। ठीक है? समझ में आया? समझ में यस आया? मैम। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियो स्पॉटलाइट। वीडियो स्पॉटलाइट मतलब क्या? द प्रेजेंटर कैन कॉन्फ़िगर द मीटिंग सो दैट ओनली द वीडियो फ्रॉम द सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स who is video source is seen by other participants in the conference. तो उसका मतलब क्या? वीडियो स्पॉटलाइट मतलब क्या? The presenter only can configure the meeting so that video from selected participants means हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटर चाहे तो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को बोल सकता है कि आप अपना फॉर एग्जांपल
आइडिया शेयर कीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे स्किल बेस्ड वेबिनार हमारा हुआ था, तो इंट्रोडक्शन देने वाले टीचर अलग थे, हम बोलते कि वोट ऑफ थैंक्स देने वाले टीचर अलग थे, और जो हम बोलते कि जो प्रेजेंटर थे, जो होस्ट थे, जो बोल रहे थे वो अलग थे, कि मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम दे कैन यूज देयर वीडियो, अंडरस्टैंड, दे कैन यूज देयर वीडियो, अंडरस्टैंड और नॉट, कि जब आपको हैंड ओवर किया जाता है, ऐसा मीन्स हम बोलते हैं कि जब वेबिनार होते हैं या वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो इंट्रोडक्शन देने वाले अलग होते हैं, हम बोलते हैं कि होस्ट अलग होते हैं, जब होस्ट के पास दिया जाता है तभी होस्ट अपना क्या करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, समझा, समझा, ये हम देख चुके, तो ये पॉइंट आपको जल्दी से समझ में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायलिंग कॉन्फ्रेंसेस, मतलब क्या, लिखिए पॉइंट, डायलिंग कॉन्फ्रेंसेस, डायलिंग कॉन्फ्रेंसेस, लिखा, हैव रिटर्न, Yes, ma'am. dial-in conferences, that dial-in conferences allows the meeting attendees to join the audio portion of the meeting by calling into the meeting from the phone, and dial-in conferencing is the subset of the audio conferencing and requires additional configuration. For more information about dial-in conferencing, तो डायल कॉन्फ्रेंसिंग आप भी इस्तेमाल कर चुके हैं, कैसे, आपने किया है कि नहीं, डायल इन कॉन्फ्रेंसिंग आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, अभी ऑनलाइन तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, डायल इन कॉन्फ्रेंसिंग किए कि नहीं किए हैं, हाँ या ना, समझ में नहीं आया, हेलो, हेलो, नो मैम। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मीटिंग प्रिंसिपल सर के साथ, या कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो जैसे कोई आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो आपने डायलिंग कॉन्फ्रेंसिंग नहीं किया, आस्क टू ज्वाइन आपके मोबाइल में आता होगा ना गूगल मीट पे, हाँ या ना, आस्क टू Yes, ज्वाइन, ma'am. हाँ, इट इज कॉल्ड डायलिंग कॉन्फ्रेंसिंग। डायलिंग कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स जो पार्टिसिपेंट होंगे वो क्या करेंगे, होस्ट को, या हम बोलते हैं कि जो प्रेजेंटर है उनको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे टू ऐड इन द मीटिंग, अंडरस्टैंड, टू ऐड इन द मीटिंग, so it is called dialing conferencing, समझा, do you understand, Yes, yes, ma'am. ma'am. okay, यस मैम। then last point is instant message conferencing, मतलब क्या, इंस्टेंट मैसेज कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आई एम, ब्रैकेट में लिख के रखिए, इंस्टेंट मैसेज कॉन्फ्रेंसिंग, ब्रैकेट में आई एम, आई एम, रिटर्न, रिटर्न, Yes, ma'am. हाँ, तो उसको हम बोलते हैं कि इंस्टेंट कॉन्फ्रेंसिंग। अभी ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग enables your users to communicate with each other in the real time on their computer using text-based message। तो जब हम इंस्टेंट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे प्रभावी, हम बोलते हैं कि ये एक मेथड है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं, या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, अभी तो व्हाट्सएप आने के बाद हम टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजते, टेक्स्ट मैसेज मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में, जैसे आप हम बोलते कि जब रिचार्ज करवाया होता है या आपका बैंक अकाउंटिंग होता है तो बैंक के मैसेजेस आते हैं, तो वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, सिंपल मैसेज, जैसे हम पहले टेक्स्ट मैसेज करते थे वैसे वहाँ पे, जैसे पहले सिंपल वाले मोबाइल थे तो वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज हम किया करते थे, एम आई राइट ना, कुछ याद आपको याद होगा, अभी व्हाट्सएप है तो अभी हम व्हाट्सएप पे ही भेज देते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी हम जल्दी से जल्दी इंस्टेंट मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं, समझा, समझा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. सिंपल वाला मैसेज, जिसे हम मीन्स हम बोलते हैं कि जैसे आपने मैसेज किया तुरंत पैसे काट, आपने मैसेज किया तुरंत पैसे काट, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने लगे तो हमें पता नहीं चलता कि हम मैसेज भेज रहे हैं या मैसेज रिसीव कर रहे हैं,
तो कितने पैसे कट होते हैं ये हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम पूरे महीने का रिचार्ज लगाते हैं। एम आई राइट ना? पूरे महीने का हम रिचार्ज लगाते हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सिंपल वाला मैसेज, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि एक मैसेज भेजने के बाद कितना पैसा कट हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक प्रभावी, हम बोलते कि हम बोलते कि इन्फ्लुएंसिंग एक कम्युनिकेशन मोड है, कि जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी रियल टाइम में मैसेज या हम बोलते कि मैसेज दे सकते हैं। समझे? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. So our third unit is over. Chapter number 3 is over in BC. We will start from tomorrow onwards. Unit number 4 means chapter number 4, and I will send you the notes today onwards. आपको जल्दी से आज मिल जाएगा नोट्स थर्ड यूनिट का, चैप्टर नंबर 3 का। और नोट्स आपको खुद को बनाना है, समझा? कुछ कुछ Okay, ma'am. पहले से मैंने आपको, जैसे आपको लेक्चर हमारे स्टार्ट हुए थे तब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके नोट्स आपको खुद निकालना है। फिर भी कुछ बच्चे अभी भी मुझे पूछ रहे हैं 8 महीने के बाद में, मैडम हमको खुद नोट्स निकालना है। ऑब्वियसली आपको नोट्स खुद निकालना है, क्योंकि पूरा आपका बुक का बुक आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाता है, तो आपको नोट्स आपको खुद को बनाना है, खुद निकालना है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Do you have any queries in the chapter number 3? Do you have any queries? अगर आपने पॉइंट लिखे होंगे तो उसमें उसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? Do you have any queries? Do you have any queries? Hello? Hello? Yes, ma'am. Do you have any queries in chapter number 3 in conferences? नहीं ना? कि है? अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते, पर्सनल फ़ोन कर सकते कि मैडम ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? ठीक है? Okay, Okay, ma'am. ma'am. We shall stop Okay, ma'am. here. We shall continue from tomorrow, that with chapter number 4. BC का chapter number 4. Okay? We shall stop here right now.